ಸಿಸಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್. ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು: ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಸೇವನೆ ಮುಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಲು ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು, ಎಸ್ಪಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಗುಂಟಿ. ನಾಳೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದ ಚಲೋ ಸ್ವಾಮಿ ಭೇಟಿ. ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಶ್ರೀ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶರ್ಮಾ. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಸೇವನೆ ಮುಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಲು ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಗುಂಟಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಬೀದರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವಿರೋಧ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಸೇವನೆಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂಬುದರ ಅರಿವು ಕೂಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ನಶೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಳ್ಳತನ, ಕೊಳ್ಳೆ, ದರೋಡೆ, ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಅಂತ ಅಪರಾಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರ ಅದರ ಕೆಟ್ಟ ನಶೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರು. ನಶೆಯ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕನಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಉನ್ನತವಾದ ಹುದ್ದೆಗಳು ಅಲಂಕರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದರು. ಬೀದರ್ ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಯೋಚಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾವುದೇ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಸೇವನೆಗೆ ವ್ಯಸನರಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು. समाज के जो देश में इनका नाम बहुत ऊंचाई से लिया जाता है क्योंकि ये बहादुर कौम होती है. मंडल बोले सभी करू जोराದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ರಾಮಪ್ಪ ಸಾವಳಗಿ, ಪಿಐ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಬೀದರ್ ಶ್ರೀಯುತರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಬೀದಿ, ಯಾವ ಕಾಲನಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾರಾಟ, ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಗಳು, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್, ಗಾಂಜಾಯಿ ಈ ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರಾಟವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೋ ಆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಆ ಕಾಲನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಗಳು ದಾಖಲೆ ಆಗ್ತಿರುವುದನ್ನ ಅವರು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕಾಲನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಹಿತಿ ತೆಗೆದಿದ್ದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 13-14 ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಪರಾಧಗಳು ದಾಖಲೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ 3 ಪಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 40-45 ಕೇಸ್ಗಳು, ಹಲ್ಲೆ ಕೇಸ್ಗಳು, ಕಳ್ಳತನ ಕೇಸ್ಗಳು ಅದೇ ಕಾಲನಿಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವುದು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟು ಜನರು ಮಹಿಳೆಯರು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಹುಡುಗಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ, ಹುಡುಗರು ಇದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಬಯಸ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ, ನಮ್ಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಆಗ ಬೇರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಮಗು ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಬೇಕು, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಭವನಗಳಲ್ಲಿ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕನಸು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಹೌದಾ? ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ಹೆಣ್ಮಗು ಆಗಲಿ ಗಂಡು ಮಗು ಆಗಲಿ, ಆ ರೀತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್,
ಗಾಂಜಾ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಹುಡುಗರು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಡೆ, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಡೆ, ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರವರ ಸ್ವಂತ ಶರೀರವನ್ನ, ಅವನ ದೇಹವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಸಿರಪ್ ತಗೊಂಡು ಸಿರಪ್ ತಗೊಂಡು 3 ದಿನ 4 ದಿನ ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವನು, ಬರೀ ಅದೇ ನಶೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಹೌದಾ? ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ, ಶರೀರ ಎಲ್ಲ, ದೇಹ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕೊಳತೋಗಿದ್ದ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕೊಳತೋಗಿದ್ದ ಮನಸ್ಸು ಇರುತ್ತದೆ. ಹೌದಾ? तबीयत ठीक है तो मन भी ठीक होगा, है ना? जो आदमी ये ड्रग्स लेते हैं उनका मन कैसे काम करते हैं? चोरी करना, छेड़ना, ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡುವುದು. ಈಗ ನನ್ನ ಹೆಣ್ಮಗುನೇ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇದೇ ರೀತಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ದವನು ನನ್ನ ಹೆಣ್ಮಗುಗೆ ಈ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿರುವಾಗ ಚಾಕು ಚುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗ್ತದೆ? ಸಿರಪ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದವನು ಗಾಡಿ ಚಲಾಯಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗ್ತದೆ? ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಾಕಲ್ವಾ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಸರ್ವನಾಶ ಆಗೋದಕ್ಕೆ? ಸೊ ಈ ಸಮಾಜದಿಂದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ, ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ತುಂಬಾ ಕುಡಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ, ಅಥವಾ ಸಿರಪ್ ತಗೊಂಡು ನಶೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಬಿಡಿ, ಅವನ ಹಾಲತ್ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಅವನ ಹಾಳಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಬಿಡ್ತೇವೆ. ನಾಳೆ ಅದೇ ನಶೆಯಲ್ಲಿದ್ದವನು ನನ್ನ ಮಗಳು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ, ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಚುಡಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? जो बंदा नशे में होता है ना, उनको माँ और बहन के फर्क नहीं मालूम होता है. समझ गए ना? इसलिए जो आदमी नशे पीड़ित होता है ना, उनको देखने के बाद आप क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा मालूम नहीं. आपका काउंसलर कौन है? काउंसलर को बोलो. नहीं मिलेगा, नहीं मिलता है. गौस साहब है ना? पूरा शहर उनके हाथ में है. गौस जी से बात करो या नहीं, मुझसे बात करो, सीधा हमको खबर दीजिए. जो वो कानून का काम है ना, हम करेंगे. हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, बीदर सिटी और बीदर जिले में कोई भी नशे पीड़ित नहीं होना था. यह हमारा पूरा लक्ष्य है, क्योंकि वो नुकसान सिर्फ
जो आदमी वो सिरप लेते हैं ना, सिर्फ उनका नहीं, क्योंकि आपकी जिंदगी गुजर गई, जो मासूम बच्चे हैं उनका भविष्य देखना है आपको। क्योंकि पहले जो सिस्टम था अब वो सिस्टम नहीं रहा, क्योंकि पहले सब लिखकर काम करते थे, अब कंप्यूटर पे आ गया। तो आप भी थोड़ा बदलना चाहिए, क्योंकि देश बदल रहा है, दुनिया बदल रही है। हम आज भी 200 साल पीछे, 200 साल आगे गए हैं। लोग जो यूजीडी का काम चल रहा है हमारे पास, 200 साल ब्रिटिश में हुआ वो आज हो रहा है। तो हम हमारे बच्चों को देखकर हमारा भविष्य बदलना है। जैसे कि आपके पास एक सिस्टम है, मेरे पिताजी शराब बेचते थे, मैं बेच रहा हूं, फिर मेरे बच्चे बेचना, ये सिस्टम आप खत्म कर दो। क्योंकि इसमें बहुत से हमारे डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि म्युनिसिपालिटी का और मंडल समाज का बहुत ही गहरा रिश्ता है। क्योंकि शुरू से यही समाज म्युनिसिपालिटी में काम करते आया और देश और बिदर की पूरी गंदगी को दूर करे। वैसे ही मंडल से कुछ लोग करते हैं, मगर पूरा मंडल बदनाम होता है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो चीज को डिपार्टमेंट खत्म नहीं कर सकता, हम खत्म नहीं कर सकते, वो चीज को आप ही खत्म कर सकते हैं। क्योंकि आप सब मिलकर, जैसे कि आपके अध्यक्ष साहब आए हैं, उनको लेके एक पर्सनल मीटिंग कर देखो भाई, आज तक जो भी हुआ, जो भी करते थे, तुमको 2 रुपए खाने को ना, हम सब मिलकर करेंगे। यहां से गंदा आदमी आज तक आना नहीं। या आप सब मिलकर एक कमेटी बनाकर मैसेज देना है कि है नहीं कि ये काम नहीं होना। जैसे कि साहब बता रहे थे कई केसेस हुए, तो इससे उन्होंने आपको बिठाया, ये बहुत बड़ी बात है। क्यों कि वैसे लोगों को डोर के अंदर भी आने नहीं देते, फिर भी आपको यहां तक बुला के इज्जत और सम्मान दिए, तो वो चीज आप कायम रखना चाहिए। क्योंकि जो डिपार्टमेंट को पूरे ला के आपके सामने मैसेज दे रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि वो अच्छा सा काम करके फिर साहब को जाके आप बोलना चाहिए, साहब आप मीटिंग करके 3 महीने हुआ, 2 महीने हुआ, देखो हम तो ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं साहब। जैसे कि आपको मार्केट टोल लगता है, पीएसआई सीपीआई साहब है, कोई बात है उनको जाके बोलो फलाना आदमी ऐसा कर रहा है, फलाना आदमी कर रहा है। अगर आपसे कोई कमीशन भी खा के ये काम कर रहा है, तो उसके लिए भी आप साहब को मिल सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों का बिजनेस रहता है, वो तुम करो मैं देखता हूं, तुम वो करो मैं देखता हूं, तो वो चीजों को आप खत्म करना चाहिए। क्योंकि जरूरी है आपका नहीं, आपके बच्चों का भविष्य, क्योंकि बहुत जरूरी है। और मैं पूरे समाज से जो भी लोग आए हैं, मेरा तो बचपन से देखे हुए रहा, क्योंकि मेरा स्वभाव क्या है, मेरा कैरेक्टर क्या है। इधर साहब बता रहे हैं कि आपको डेवलपमेंट के लिए बैंक से भी कुछ लोग आए हैं, अगर वैसा लोन वगैरह भी कुछ होना तो उसके बारे में बताएंगे। मैं जो बता रहा था बेसिकली आपको, जो आप बिजनेस करते हैं उसमें हम बिल्कुल आपके साथ है, मगर गलत काम के लिए नहीं। जैसे गांजा बेचेंगे, गांजा पीने से एक आदमी की मृत्यु होती है, मगर उसकी फैमिली की पूरी मृत्यु होती है। शराब पीने से उसकी एक मरता है, उसकी फैमिली कोलैप्स होती है। तो ये चीजों से आप, जैसे कि चोरी है, देखो कोई शादी के लिए रखता है, कोई यानी अपनी कुछ पर्सनल चीज के लिए रखता है, आप ले जाकर उसमें पूरा ये कर देता है, उनकी पूरी जिंदगी हो जाती है। तो इस चीजों में आपका फर्ज बनता है कि अच्छा काम करके आप भी, आपको जो लेबल लगाया वो हटाकर आप सब मिलकर, पूरे मेरी माँ और बहनों से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमें जागृति लाना जरूरी है। आपके बच्चों के लिए कर्नाटक गवर्नमेंट इतनी फैसिलिटी दी है कि आप बच्चों को पढ़ाए, तो जिस चेयर पर आज गेस्ट बैठे हैं, इसी चेयर पे आपके बच्चे बैठेंगे। क्यों कि आप अगर एजुकेशन दिए तो हर एक चीज आपको मिलती है एजुकेशन से। जो बच्चा पढ़ता है उसको ये जरूरी नहीं है वो बादशाह का बेटा है तो बादशाह बनेगा, एसपी साहब का बेटा है एसपी साहब बनेगा, नहीं, आपका बच्चा अच्छा एजुकेशन निकलेगा। संविधान में लिखा गया है जो एजुकेशन अच्छा करेगा उसको कुर्सी मिलेगी। तो आप लोगों से मेरी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग आज से सिस्टम बना लीजिए, ये गांजा, शराब और गोली, ये जो भी नशा आपके एरिया में बिक रही है वो टोटल बंद कराना। बंद। हमारा रिक्वेस्ट से आईएसओ पूरे मंडल का महिलाएं, बच्चे एंड पूरा मेंबर्स, आपको हमारा एसपी साहब परसों क्या बोले, ये मंडल में बहुत लोगों को शराब बेच के, गांजा बेच के, नशा का
दवा भेज के फैमिली बर्बाद हो रहे, उन लोगों से मुझे मिला हो, उन लोगों से मिलना है, उन लोगों को कुछ हेल्प करना है, एक मीटिंग अरेंजमेंट करो बोल के साहब बोले। इसके लिए हम आज मीटिंग अरेंजमेंट करें। ये मीटिंग का उद्देश्य क्या है बोले तो, या कम से कम 200-250 घर है ना, उसमें थोड़ी लोग, बहुत थोड़े लोग उनका जिंदगी चलाने के लिए बहुत गलीज काम कर रहे हैं। ये क्या है, मंडल बोले तो पूरा देश का बैड थिंग्स, गलीज थिंग्स हटा के पूरा नीट रखने का मंडल है ये। उस मंडल से गलीज काम कभी भी नहीं होना। ये थोड़े लोग क्या कर रहे हैं, देखो साहब हम बीमार है, देखो साहब हम विधवा है, देखो साहब हम डिसेबल्ड है, अपंज है, चलने नहीं हो रहे, इसलिए हमें दूसरा काम करना नहीं होता बोल के वो लोग गांजा बेच रहे, शराब बेच रहे, नशे का दवा बेच रहे। उससे क्या हो गया, पूरे मंडल का जो नौजवान थे, तो आदमी थे, सब लोग उसमें एडिक्ट होके बर्बाद हो गए। और उससे जो बाकी का बीदर का सिटी में जो स्लम है, जो अन्य एजुकेटेड लोग हैं, जो उतना होशियार लोग नहीं, वो लोग भी इधर आके पी रहे, पी के एडिक्ट हो गए। परसों एसपी साहब सुबह सुबह मुझे 8:30 बजे कॉल करे, अरे डीएसपी तुम कहां है बोल के बोले, सर मैं इधर ही हूं, इमीडिएट ये मंडल के पास आ जाओ बोले। बोलते ही मैं क्या करे, मार्केट पीएसआई को बोला, बोलते ही साहब बोले देखो इधर एक आदमी पी के रोड के ऊपर गिर गए, इसका कौन जवाबदार, तुम आ जाओ बोल के बोले। आके देखे तो एक आदमी उधर पड़ा है। वो बोला सुबह 6 बजे ये दारू इसको कहां मिला, दारू ये कहां पिया, कहां मिला, मुझे उसका रिपोर्ट चाहिए। वो आदमी को आके देखे तो वो भी एक अच्छा आदमी है, वो दारू पिया, यहां से पी के रोड के ऊपर गिरा। आपको याद है सर, परसों सुबह सुबह ऐसा सिचुएशन बहुत आ रहा है। इसके लिए साहब क्या बोले, इसको हम ये लोगों को हम अच्छे, जो आदमी ऑलरेडी म्युनिसिपैलिटी में काम कर रहे हैं, शान से जिंदगी चल रहे, जो भी है जितना है, हमारा जिंदगी हमारे लिए बहुत अच्छा है। इधर सब लोग करोड़पति नहीं है, इस देश में सब लोग ये नहीं है, जितना भी है उनका जिंदगी अच्छा ही है, जैसा जितना है उसमें हम सेटिस्फाइड रहना। हम क्यों हमारे ऊपर वाले को देखना, हम क्यों हमारे टाटा वाले को देखना, हमारा जो नीचे है उनको देखना, हम हैप्पी रहते। इसलिए क्या है, जो भी तुम काम करते वो काम में सेटिस्फाइड रहना, अच्छा थिंक करना, अच्छा काम करना, बच्चों को अच्छा सिखाना। हमारा म्युनिसिपैलिटी अध्यक्ष साहब बोले कैसे भी है जिंदगी हो गया हमारा, लेकिन बच्चों का बारे में सोचना, बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना, बच्चों को हेल्थ, अच्छा हेल्थ देना। हमारे साहब बोले साउंड माइंड इन साउंड बॉडी बोल के हिंदी में बोले साहब, एसपी साहब बोले करेक्ट, वो साउंड दिमाग का अच्छा रहे तो शरीर अच्छा रहता, इसलिए हम दिमाग अच्छा रखना। इसलिए एसपी साहब क्या बोले, देखो जो भी आदमी को काम नहीं है, जो विधवा है, जो अपंग है, जो रोगिष्ट है, एज ओल्ड है, उनको ये वो काम कर रहे हैं ना, उनको बैंक वालों को लेके उनको लोन दिलाओ, उनको सब्सिडी दिलाओ, उनको फायदा करो, उनको एक बिजनेस लगाओ, लेकिन किसी हालत में ये नहीं चलाना। इससे यूथ का, बच्चों का इन
इंसानियत का, इंसान का बर्बाद नहीं होना, ऐसा बोल के इंटेंशन है। हम इधर आए बोले तो तुम्हें इससे क्या होता वो सुनाने के लिए नहीं आया। इससे जो भी काम कर रहे हैं इससे बाहर आना, तुम बाहर आके शान से जिंदगी, जो तुम्हारा लीडर्स है, तुम्हारा वो ये एडवोकेट है, कितना अच्छा बात करता, नहीं साहब ये बहुत हो गया, हमें अच्छा करना है, अच्छा जिंदगी जीना है, हमारा गरीबी रंग है, गरीबी श्रीमंत हो ये नहीं है, गरीबी रंग है, लेकिन जिंदगी अच्छा। तुम सबको देखे तो ये होता कितना अच्छा, देखो कितना स्मार्ट, कितना अच्छा है तुम लोग। कोई भी ऐसा नहीं लगता तुम ऐसा काम कर रहे हो, है ना? ऐसा जैसा हमारा फैमिली है ऐसा तुम सब है, कोई डिफरेंस नहीं। हमें देख के खुशी हो गया, इतना अच्छा है। ये हमारा बीदर सिटी में कहीं भी कुछ भी हो गया, क्या हो गया, मांगरवाड़ी का साहब, मांगरवाड़ी का साहब, ऐसा सिचुएशन है। इसके लिए आपको हम रिक्वेस्ट करते, जो भी बैंक वाले मैनेजर साहब भी आए, आपसे अच्छा बात भी करेंगे वो, और तुम्हारा लीडर्स है, जिस को लोन चाहिए लोन को हम दिलाने का कोशिश करेंगे, आपको कुछ तो क्या हेल्प करने का कोशिश करेंगे। लेकिन आप एक वादा करना है, आज से हम किसी को भी गांजा नहीं भेजेंगे।